Hello students, welcome to Mathematics of Class 2, Chapter 3, How much can you carry? This is our new chapter. Let's start it now. And exercise which is related to the chapter. What is written here? Circle the objects that can be used to measure the weights. अब हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उसमें सर्कल लगाना है जो वेट को मेजर करने के लिए यूज होता हो। समझ में आ रहा है? सो वेट मेजर करने के लिए मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट बैलेंसेस दिखाए थे ना। वेइंग बैलेंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट दे आर यूजिंग द वेइंग बैलेंस। ओके, सो हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, उसमें कौन से ऑब्जेक्ट है जिसका वेट मेजर करने के लिए होता है। यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दिया गया है। यू कैन सी दिस 3 सर्कल, दैट इज द आंसर। दैट मीन्स वेइंग बैलेंस जो है वो वेट मेजर करने के लिए यूज होता है। देन हियर द व्हाट इज दैट इज which one is that spring balance, right? जिससे हम स्प्रिंग से हम बैलेंस मेजर कर सकते हैं वेट। दिस इज अ वेइंग स्टोन, ये वेइंग स्टोन है, वो रख के भी हम वेट कर सकते हैं। आपको पता है ना कि वेइंग बैलेंस में वन साइड वी आर पुटिंग द स्टोन एंड अनदर साइड वी आर पुटिंग द ऑब्जेक्ट, सो दैट इज ऑल्सो फॉर यूजिंग द फॉर मेजरिंग द वेट। ओके, so these three objects can be used to measure the weight. But other three objects about what? Can you see this one? This is the mug. Okay, have you seen? For you are using with the bucket. Okay, so that is written some measurement on it. So that is in ml. Ml means when you have to measure the liquid, that time you are using this one, right? Okay, this is the measure tape. Measure tape for using measuring the length. ओके किसी भी चीज का लेंथ मेजर करना हो तो आप मेजर टेप यूज करते हो। ठीक है, जैसे कि हमें कपड़े का लेंथ मेजर करना है या वन पॉइंट से अनदर पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है, एनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट टाइम वी आर यूजिंग अ मेजर टेप। Okay, the next one here is the given oil can. Oil can means it's showing the liquid. So liquid measure करने के लिए जो units है वो different है, okay, but वो weight measure करने के लिए use नहीं होता है। So this three object which already made a circle, that is using to measure the weight. Okay, समझ में आया आपको? तो when you get this PDF, that time you will try to draw these objects. Okay, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा चलेगा, पर अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके आपको ड्रॉ करके इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, राइट? Okay, let's see the next one, students. This one. Okay, so here what is given here? Color the heavier. Read this spelling heavier clearly. HEAVIER, heavier object blue and lighter object yellow in each group. अब हमें यहाँ पे जो ग्रुप दिए गए हैं उसमें जो हैवियर है उसको ब्लू कलर करना है और जो लाइटर है उसको येलो कलर करना है। ठीक है, तो आप ग्रुप देख सकते हो, दिस इज द ग्रुप ए, दिस इज ग्रुप बी एंड दिस इज ग्रुप सी, राइट? ओके, सो ग्रुप ए में क्या दिया गया है? की एंड द लीफ। ओके, तो आपको पता है heavier means what? If the weight is more, that is called heavier, and if the weight is less, that is called the lighter, right? Okay, so which is heavier, key or leaf में क्या heavier है? Key is the heavier, that means we should do here blue color. Okay, instruction में क्या लिखा है कि heavier को blue color करना है, तो आपको यहाँ पे blue color करना है। और जो lighter है, the leaf is lighter, so that you have to do the yellow color. So you have to compare only these two things. Now second example में plastic bag दिया है and the book दिया है, तो आप देख सकते हो book is the heavier, so here you have to do the blue color, and the plastic bag is lighter, so yellow color. क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल पे लॉक एंड फ्लावर दिया गया है, सो लॉक इज द हैवियर, तो लॉक में आपको ब्लू कलर करना है एंड द फ्लावर इज द लाइटर, सो आपको येलो कलर करना है। क्लियर दिस एक्सरसाइज? ओके, सो डोंट आस्क मी, यू डोंट हैव टू राइट इट नाउ। ओके, सो लेट्स सी सम मोर एक्सरसाइज स्टूडेंट्स। So what is our question? Fill in the blank. This is from chapter 3 only, right? How much can you carry? So A, B, C, D, these are the example number. जैसे 1, 2, 3 लगाते हैं ना, वैसे हम मैथ्स में A, B, C, D लगाते हैं because it's match up with the numbers and all that. That's it. So here, what is written? Lion, Lion, lion is dash than a hen. यानी लायन क्या है? हैन से। हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन पे ध्यान देना है। HEAVIER, everyone read this spelling so and pronounce it properly, heavier. Then here written LIGHTER, lighter. So can you see this hyphen? यहाँ पे ये जो hyphen है, ये लाइन है, वो बताती है कि आपको इन दोनों में से कोई भी एक ही आंसर लिखना है, heavier या lighter. Okay,
So you have to see the blank. Lion is dash than a hen. यानी heavy है या lighter? Okay. So here lion is heavier, right? So lion heavy होता है ना hen से, तो हम यहाँ पे heavier लिखा है, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? HEAVIER, heavier. So lion is heavier than a hen. Okay. Let's see the next one. MATCH, matchbox is dash THN than a book. अब जो मैच बॉक्स है वो बुक से क्या है? हेवियर है या लाइटर? सी द ऑप्शंस. हेवियर, लाइटर. ओके, एनीवन विल टेल मी व्हाट आंसर शुड कम हियर? कर देना. सो मैच बॉक्स बुक से कैसा होता है? लाइटर होता है. वेट कम होता है ना मैच बॉक्स का, तो उसके लिए हम लिखेंगे लाइटर. So everyone clear? LIGHTER, lighter. Lighter means जिसका weight कम होता है उसके लिए हम lighter लिखते हैं. ठीक है. Next one is that the dash is heavier than a dash. Okay. So यहाँ पे लिखना है कि what is written? ऑप्शन में क्या है? SHUTTLE, subtle. COCK, cock, subtle cock. और हाइफन करके क्या लिखा है? RACKET, racket. तो हमें यहाँ पे कंपेयर करना है. बीच में वर्ड क्या दिया है? हैवी है, यानी ये चीज से ये हैवी होता है, वो कंपेयर के अकॉर्डिंग ये वर्ड को एडजस्ट करना है. तो शटल कॉक एंड रैकेट पता है आपको? व्हाट इज शटल कॉक? आप बैडमिंटन खेलते हो ना, जो उसके रैकेट होते हैं वो तो सबको पता है, और जिससे खेलते हो उसे क्या कहते हैं? शटल कॉक. हमें आंसर में क्या लिखना है? किससे क्या हैवी होता है? रैकेट से हैवी. रैकेट इज हैवियर देन अ शटल कॉक ना. अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि रैकेट शटलकॉक से हैवियर है, तो हमें पहले ब्लैंक में रैकेट लिखना है और दूसरे ब्लैंक में शटलकॉक लिखना है. ठीक है. तो आपको स्पेलिंग ऑलरेडी दी गई है, उसमें से देख के आपको लिखनी है. सो RACKET, रैकेट. सो रैकेट इज हैवियर देन अ शटलकॉक. SHUTTLE, शटल. COCK, कॉक. शटलकॉक. समझ में आया? रैकेट और शटलकॉक समझ में आया ना आपको? बैडमिंटन खेलते हो ना, बैडमिंटन. ओके. सो नेक्स्ट वन. सपोज इफ आई चेंज द वर्ड, यहाँ पे हेवियर की जगह मैंने लिख दिया लाइटर देन, तो ये आंसर चेंज हो जाएगा. पता है क्यों? अगर मैं यहाँ पे लाइटर देन लिखूंगी तो शटलकॉक इज लाइटर देन अ रैकेट हो जाएगा. ओके. तो आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग वर्ड को लिखना है. क्लियर? नेक्स्ट वन. द डैश इज लाइटर, LIGHT, या लाइटर देन अ डैश. अब किससे क्या लाइटर है वो लिखना है. CHOCOIT, चॉकलेट एंड बॉल. कौन लाइटर है किससे वो लिखेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ब्लैंक पे क्या आएगा? चॉकलेट आएगा या बॉल, या सेकंड ब्लैंक पे क्या आएगा वो आपको बताना है. हु विल से दिस? ओके. सो क्या लिखेंगे? द चॉकलेट इज लाइटर देन अ बॉल. ओके. सो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे CHOCOLATE, चॉकलेट. चॉकलेट इज लाइटर देन अ बॉल. यानी चॉकलेट जो होता है कम होता है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट वन. The dash is the LIGHTEST, lightest. यानी कौन लाइटेस्ट है? आपने यहाँ पे सभी देखा कि यहाँ पे ER यानी हैवियर, लाइटर ऐसा होता है. सो हैवियर और लाइटर कब होता है? जब हम दो चीज की कंपेयर करते हैं तब ER फॉर्म लगता है. ठीक है. कब क्या लगता है? ER. जैसे हैवी, हैवियर एंड हैवीएस्ट दोनों सेम ही वर्ड है, बट इट्स अपॉन द ग्रामेटिकल. ओके. वर्ड दो वर्ड और दो से ज्यादा वर्ड होते हैं तो हम हैवीएस्ट या लाइटेस्ट यूज करते हैं. तो हमें यहाँ पे हमारे बुक एंड बैट, इन तीनों में से किसका वेट सबसे कम है? यानी लाइटेस्ट है. समझ में आया? सो द डैश इज द लाइटेस्ट. तो विच ऑप्शन आर हियर? लीफ, बुक एंड बैट. हु विल से नाउ? तीनों में से लीफ सबसे लाइट होता है, तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे LEAF, लीफ. द लीफ इज द लाइट्स. ओके. सो नेक्स्ट वन इज द डैश इज द हैवीएस्ट. अब बताना है हमारे पास ऑप्शन है उसमें हैवीएस्ट कौन है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? BUTTERFLY, बटरफ्लाई. DUC, डक. एंड ELEPHANT, एलिफेंट. इन तीनों में से हैवीएस्ट कौन है? हैवीएस्ट मींस जिसका वेट सबसे ज्यादा है. ओके. So the elephant is the heaviest. तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे ELEPHANT, elephant. Okay. The elephant is the heaviest. हमें हमारे पास देखना है जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे, so you have to see the options and whichever is the heaviest or lightest, according to you have to write the answers. Right students? Easy है ना? Okay. So आपको blanks में से देख के spelling लिखनी है, so no mistakes in the spelling, right? Okay. Let's see the next one. ARRANG, arrange the
objects given below in ORDER order from the LIGHTS lightest to HEAVIEST heaviest by WRITING writing their names. ओके यानी हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स जो नीचे दिए गए ये वाले, ठीक है, उसको अरेंज करना है. कौन सा अरेंज करना है? लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट, यानी लाइटर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करके हैवियर ऑब्जेक्ट में अरेंज करना है बाय राइटिंग द नेम. जो है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है. यहाँ पे हमें पिक्चर नहीं दिए, नेम ही दिया, नेम को अरेंज करना है. ठीक है, सो आप यहाँ पे देखोगे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बुक, ELEPHNT, एलिफेंट एंड पेन. तो आपको पता है सभी ऑब्जेक्ट को आपने दिखा, ठीक है, तो उनमें से किसका वेट सबसे कम है? लाइटेस्ट स्टार्ट करना है, लाइटेस्ट हैवीएस्ट ऑर्डर जाना है. किसका वेट सबसे लाइटेस्ट है? पेन का. मैं यहाँ पहले क्या लिखूंगी? PEN पेन, देन आई पुट द कॉमा. आपको पता है कि वर्ड को डिफरेंशिएट करने के लिए कॉमा लगाते हैं, जैसे नंबर को डिफरेंशिएट करने के लिए कॉमा लगाते हैं ना, वैसे. सो पेन के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट हैवियर है? बुक. पहले सबसे लाइटेस्ट वाला लिख दिया, अब उसका हैवियर तो बुक आएगा. सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे BOOK बुक, देन अगेन आई पुट द कॉमा. ओके, बुक से भी ज्यादा हैवियर क्या है? एलिफेंट. सो हियर वी विल राइट ELEPHANT एलिफेंट. ओके, समझ में आया आपको कैसे अरेंज करना है? फर्स्ट इज द लाइटेस्ट, देन हैवियर एंड देन हैवीएस्ट. क्लियर? ओके, हाउ टू अरेंज इट? सो सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन में दिया है टेबल एंड बैट एंड क्रेयॉन. क्रेयॉन मीन व्हाट? द कलर विच आर यूजिंग फॉर द कलरिंग ना. आप कलर यूज करते हो ना जिससे कलर करने के लिए, वो क्रेयॉन है. सो नाउ टेल मी व्हाट कम फर्स्ट एंड व्हाट कम लास्ट. चलो नेक्स्ट सी हियर. तो हियर क्रेयॉन जिससे आप कलर करते हो, दैट इज द लाइटर वन ऑब्जेक्ट. सो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे CRAYON क्रेयॉन, देन आई पुट द कॉमा. एंड विच इज हैवियर देन क्रेयॉन? बैट. वी आर प्लेइंग विद द बैट ना, क्रिकेट खेलते हो ना, सो दैट द बैट विल कम नेक्स्ट. एंड बैट के बाद क्या आएगा? टेबल. सो टेबल इज मोर हैवियर आउट ऑफ दिस, सो देन आई विल राइट द टेबल. ओके, अंडरस्टूड दिस? Okay, let's see the next one. Leaf, TLEPHONE, telephone and cup. तो हमें यहाँ पे इसको भी लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट ऑर्डर में अरेंज करना है. टेलीफोन मीन्स द फोन विच इज हैविंग द रिसीवर. ओके, दैट टेलीफोन. वी आर नॉट टेकिंग हियर मोबाइल. मोबाइल का वेट तो बहुत कम होता है, इसलिए हमें टेलीफोन ही कंसिडर करना है. ठीक है, ओके, नाउ अरेंज इट. सो लेट्स राइट फर्स्ट लीफ इज द लाइटेस्ट वन. लीफ से हैवियर है कप, और कब से हैवीएस्ट है? टेलीफोन. सो TELEPHONE. ओके, स्पेलिंग तो आपको यही से देख के लिखनी है, सो नो मिस्टेक्स इन स्पेलिंग, राइट? ओके, वेरी गुड, अल्तमास. नेक्स्ट वन इज साइकिल, फ्लावर एंड बॉटल. ओके, साइकिल मीन्स बाइसिकल. सो विच विल कम फर्स्ट एंड विच विल कम लास्ट नाउ? तो फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे फ्लावर. सो फ्लावर का वेट सबसे कम होता है, फ्लावर से ज़्यादा वेट होता है बॉटल का. सो अगर आपको एक्सपीरियंस करना हो तो आप क्या करोगे? उसको कैरी करके देखोगे और आपको पता चलेगा कि इसमें से किसका वेट कम और ज़्यादा है. और बॉटल्स के बाद बाइसिकल यानी साइकिल. तो आप ये तीनों चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल हो घर पे, तो आप उसको कैरी करके नोटिस करना कि विच वेट इज द लाइटर दैन द हैवियर एंड द हैवीएस्ट. सो यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट दिस एक्जेक्टली, राइट? समझ में आया? So students, here I have completed this two exercise on only one. And define the TOTAL total WEIGHT weight of the FOLLOWING following. Find the total weight of the following. ओके, तो हमें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसका टोटल वेट फाइंड करना है. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम. One apple. Do you like apple? Of course, na? Apple, CONTAINS contains, yeah, 50 grams. यानी one apple का जो weight है वो 50 grams है. Understood? ग्राम्स यानी पता है ना आपको, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? G. क्या लिखते हैं? G. जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं G, राइट? तो एप्पल जो है वो इज अ लाइटर ऑब्जेक्ट, सो दैट शुड बी मेजर्ड इन ग्राम. ओके, इसीलिए आप देख सकते हो कि उसके पीछे ग्राम लगा है. जब हम वेट की बात करते हैं ना, सो कोई भी नंबर के पीछे हम यूनिट लगाते हैं, यानी ग्राम या किलोग्राम लगाते हैं. हियर वी टॉक अबाउट द वेट, सो वी पुट द G और kg आफ्टर द नंबर.
इट शोज जो वेट। जब भी आप जी और केजी देखो तो आपको पता चलेगा कि वो वेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 एप्पल है उसका वेट है 50 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर, यानी कितने एप्पल्स है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, यानी टोटल 4 एप्पल्स है। तो हमें ये जो 4 एप्पल्स है उसका वेट फाइंड करना है, यानी व्हाट इज रिटन, टोटल वेट। एवरीवन रीड द स्पेलिंग ऑफ वेट, WEIGHT, वेट। यानी हमें इन 4 एप्पल का टोटल वेट फाइंड करना है, ठीक है। Students, don't ask this. You don't have to write this in your CW book or any other book. I will send the PDF. That time you will complete. Okay. So just now you understand. Okay. तो टोटल वेट फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पे 1 एप्पल का वेट दे दिया है 50 ग्राम, तो 4 एप्पल का वेट कितना होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डू यू हैव एनी आइडिया कि हम 4 एप्पल का वेट कैसे फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे 1 एप्पल का वेट लिखेंगे पहले 50, एक एप्पल का 50 है ना। नाउ आई विल पुट द सेकेंड एप्पल, यानी हम 4 एप्पल का वेट फाइंड करना है। जब भी हमें टोटल फाइंड करना होता है तो हम प्लस करते हैं, ठीक है। यानी हर एक एप्पल का प्लस नंबर को प्लस करेंगे एंड देन वी गेट द टोटल नंबर। सो 1 एप्पल का वेट 50 लिखा, देन सेकेंड एप्पल का 50, नाउ थर्ड एप्पल, सो अगेन वी एड 50, now one more, so again we add 50, that means we have to add 50 4 times। हम 50 को 4 times ऐड करेंगे, समझ में आया। तो कितना होगा आपको पता है 50 के, तो हमें यहाँ पे ऐसे वर्टिकली पहले अरेंज करना होगा, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, यानी 50 को हम ऐसे करके ऐड करेंगे, ठीक है। दिस वर्क हैज टू डू इन द रफ पेन, नॉट नाउ। सो 0, सारे 0 का एडिशन 0 ही होगा। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, एडिशन करना आता ना आपको। सो टोटल वेट कितना हो गया 200, कितना हो गया 200। सो 200 क्या है, 200 लिखेंगे तो हमें पता चलेगा व्हाट इज दैट। जब हम वेट की बात कर रहे हैं तो हमें कंपलसरी यूनिट लगाना पड़ता है, ये जो ग्राम और किलोग्राम है ना वो यूनिट है। 200 यहाँ पे वेट किस में दिया है, ग्राम में। तो आंसर में भी क्या आएगा, ग्राम। ग्राम यानी आपको जस्ट जी लिखना है, स्मॉल जी, ओके। यानी हमें किसका वेट फाइंड करना था, 4 एप्पल्स का। द वेट ऑफ 4 एप्पल्स आर 200 ग्राम, ओके। 4 एप्पल्स का जो वेट है वो 200 ग्राम है, समझ में आया। तो आपको पता चला टोटल फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमें जितना वेट है उस सबको प्लस करेंगे तो हमें टोटल फाइंड हो जाएगा, ठीक है। आर यू क्लियर एवरीवन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वन बॉक्स कंटेन्स यानी कितना वेट है वो बता रहा है। 1 बॉक्स कंटेन्स 20 ग्राम, यानी एक बॉक्स जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है उसका वेट है 20 ग्राम, समझ में आया। 20 ग्राम, ग्राम से मीन्स वेट कैसा होगा, बॉक्स कैसा होगा, लाइटर होगा ना। जो लाइटर चीज होती है वही ग्राम में होती है, ठीक है। यानी उसका वेट 20 ग्राम से। तो हमें क्या करना है, देयर आर 1 2 3 4 5, यानी हमें यहाँ पे 5 बॉक्स का वेट फाइंड करना है, टोटल वेट। टोटल वेट करके लिखा है ना, तो एक बॉक्स का वेट दे दिया है तो हमें 5 बॉक्स का फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 बॉक्स का कितना दिया है 20, यानी हम 20 को 5 बार ऐड करेंगे, टोटल फाइंड करना है तो 5 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा ना। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 देन प्लस 20 एंड प्लस 20, टोटल फाइंड करना हो तो हमें एडिशन करना पड़ता है, ठीक है। और अनदर मेथड है वो मल्टीप्लिकेशन है, अगर सेम नंबर का ही आप एडिशन कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ यू कैन डू द मल्टीप्लिकेशन है ऑल्सो, बट हियर द नंबर्स आर बिगर सो यू डोंट नो हाउ टू डू द मल्टीप्लिकेशन, सो वी फॉलो द एडिशन मेथड, रिपीटेड एडिशन मेथड ओनली, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बॉक्स का 20, सेकेंड बॉक्स का 20, थर्ड बॉक्स, देन फोर्थ बॉक्स का वेट एंड 5 बॉक्स का, यानी 5 बॉक्स का जो 20, एक बॉक्स का 20 है ना, वैसे हमने 20 को 5 टाइम्स ऐड कर दिया तो हमें टोटल वेट मिल जाएगा 5 बॉक्स का। अब आपको पता है कि आपको ओरली कैलकुलेशन आता है, 20 प्लस 20 कितना होता है 40, यानी 2 प्लस 2 4 होता है ना, तो 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 20 80 और 80 प्लस 20 100, ओके। तो आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे अरेंज करके भी एडिशन कर सकते हो, ठीक है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज 100, 100 क्या है, 100 कोई नंबर है, पर हमें तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, तो हमें 100 के पीछे क्या लगाना है, यहाँ पे कौन सा यूनिट दिया है 20, क्या है ग्राम में है, तो 100 भी क्या आएगा ग्राम में। यानी टोटल वेट ऑफ 5 बॉक्सेस आर 100 ग्राम। आर यू क्लियर दिस, ओके, सबको समझ में आया, ठीक है। ओके, लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल। इन द थर्ड एग्जांपल, वन रूलर कंटेन्स, रूलर यानी स्केल, एक रूलर का वेट कितना है 30 ग्राम्स, ओके।
तो यहाँ पे हमें कितनी रूलर्स दी गई है, 2 रूलर्स, यानी हमें 2 रूलर्स का टोटल वेट फाइंड करना है। ओके, आप स्केल भी बोल सकते हो। तो 2 रूलर्स का वेट कितना होगा, 1 का 30 है, तो हमें 30 को कितनी बार प्लस करना पड़ेगा, 1 एंड 2 टाइम्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, 30 प्लस 30 करेंगे, ठीक है। 2 रूलर्स है ना, तो 2 बार प्लस करेंगे ना 30 को, राइट। सो 30 प्लस 30 कितना होता है, तो आप यहाँ पे साइड पे, नॉट हियर, यू कैन डू द सेम वर्क इन द रफ पेज, राइट, बट आई एम शोइंग हियर। 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 3 6, तो कितना हो गया 60। अब ओनली 60 लिखोगे सो इट्स नॉट ओके। ओके, 60 हमें कुछ भी बताता नहीं है, 60 इज जस्ट अ नंबर, बट हियर वेट की बात हो रही है, सो वी मस्ट राइट अ ग्राम और किलोग्राम। यहाँ पे ग्राम है तो हमें उसके पीछे ग्राम लगाना है। अगर सपोज यहाँ पे किलोग्राम लगाते यानी केजी लगाते। आर यू क्लियर, सबको समझ में आ रहा है हाउ टू फाइंड द टोटल वेट? Okay, so now our question is here, circle the lighter object. Okay, so the next first question is circle the lighter object. Lighter. Keep this spelling in your mind, lighter. So here two objects are given. One is the chair and one is the box. So which one is lighter? Tell me the answer. Which one is lighter? Box. Okay. Okay. Stop. Box is the correct answer. Box is the correct answer. So here we have to make the circle. हमें क्या बनाना है, उस पे सर्कल बनाना है. Okay. Now the next question is circle the heavier object. अब हमें यहाँ पे heavier object पे सर्कल करना है, ठीक है. Okay. So the next question here, circle the heavier object. Okay. So here the ship is given and the boat is given. So आपने देखा होगा, आपने ship भी देखी होगी और boat भी देखा होगा. That is actually yacht, right? तो उसमें से कौन सा heavy होता है? So yacht is heavier ना? So हमें उस पे circle करनी है, ठीक है? Understood this? Okay. See the third one. सर्कल द हैवियर ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे भी हैवियर ऑब्जेक्ट में ही सर्कल करना है. सो विच इज गिवन हियर, द ट्रक एंड द एरोप्लेन. सो विच ऑब्जेक्ट इज हैवियर, डू से दिस, एरोप्लेन, राइट. एरोप्लेन इज हेवियर ना, सो हमें एरोप्लेन पे सर्कल करना है. क्लियर दिस? ओके, सी द नेक्स्ट वन, सर्कल द लाइटर ऑब्जेक्ट. अब हमें लाइटर ऑब्जेक्ट पे सर्कल करना है, ठीक है. So here, what is this? It's a boat and here is the pillow. So which is lighter one? Boat और pillow में क्या lighter है? Pillow ना? Okay, so pillow पे हमें circle करना है. Clear? Understood? It's easy ना? Lighter and heavier. Are you clear? When the weight is less, that is called a lighter, and the weight is more, that is called the heavier. Are you clear this? Okay, let's see some other exercise. The next one is here. Weight. This worksheet is on based on weight. So draw a circle to the object that are heavy. अब हमें यहाँ पे भी heavy object पे circle बनाना है, ठीक है. So how can you do it? See here. So can you see this is what? This is a seesaw, right? ये भी seesaw है. आपको पता है कि seesaw कैसे work करता है? When the weight is more, it goes down, and the weight is less, it goes up. तो यहाँ पे it's not actually seesaw, it's a given a weighing balance. Okay, but it's look like a seesaw also, और weighing balance भी दिख रहा है ना. So weighing balance भी same seesaw जैसा ही work करता है. तो जहाँ पे weight ज़्यादा होता है वो साइड नीचे जाती है और जहाँ पे weight कम होता है वो ऊपर जाती है. तो यहाँ पे one side chair weight का chair दिया है और अंदर side the cauliflower is given. Okay, so whose weight is more? The chair weight is more because that side is down. ऐसे भी हम देख सकते हैं ना कि जहाँ पे वेट ज़्यादा होता है वो नीचे होता है. तो हमें कहाँ पे सर्कल करना है, द ऑब्जेक्ट्स दैट आर हैवी, यानी हैवी ऑब्जेक्ट पे हमें सर्कल करना है, ठीक है. सो हियर वी हैव टू डू द सर्कल, राइट. ओके, so next one we see here, here is the owl and here is the lemon. Whose weight is more,
whose bird or lemon or owl, who is heavier here? So which side is down? बैलेंस weighing बैलेंस की कौन सी साइड डाउन है? आउल ना. सो आउल इज हैवियर, सो हमें यहाँ पे आउल पे सर्कल करना है. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट वन हियर द एप्पल एंड द चिली. So which side is down? Apple na. So heavier side is goes down, right? That you know that, and the lighter side is goes up. So apple is heavier. So here you have to circle on apple. Right students? सबको समझ में आया कैसे करना है? Okay, so here what is written? Circle the lighter object. Okay, आप देख सकते हो lighter object में circle करना है. ठीक है. So what is given here? This is the bullet train and this is the jeep. So which object is lighter? किसका weight कम है? आपको पता है कि bullet train is so heavy है ना, तो jeep is lighter. हम compare हमें ये दो चीज का करना है ना, तो jeep उससे lighter है ना, weight कम है ना jeep का, हमें कहाँ पे circle करना है? jeep के ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं सर्कल द हैवियर एनिमल. यानी हमें यहाँ पे जो एनिमल्स दिए उसमें हैवी पे हमें टिक सर्कल करना है. सो हियर इज गिवन द कैमल एंड हियर इज गिवन द हैन. ओके, कॉक. सो विच इज हैवियर? सो बट ऑफ इज द कैमल इज हैवियर, सो वी हैव टू मेक अ सर्कल ऑन कैमल. ओके. Let's see the next one. Circle the lighter animal. हमें lighter animal पे circle करना है. So here is given the cow and here is given the rabbit. So which one is lighter? किसका weight कम है इसमें? Rabbit का ना. So हमें यहाँ पे rabbit पे circle करना है. So you have to just do as per the instruction, right? Now next one is circle the heavier animal. हमें यहाँ पे heavy पे करना है. तो horse and this one is the duck. Who is heavier? Horse ना. तो हमें यहाँ पे हॉर्स पे सर्कल करना है. आर यू क्लियर दिस? सबको समझ में आया? इजी है ना? ओके, लेट्स